Ignited Minds Tutorials has just released a new video focusing on Maths revision for Class 9 CBSE and Maharashtra State Board students. The video covers important questions from various topics in the syllabus, providing a comprehensive review for students preparing for their exams. With clear explanations and examples, the video aims to help students understand and master key concepts in mathematics. Whether it's algebra, geometry, or trigonometry, this tutorial has got you covered. By breaking down complex problems and demonstrating step-by-step solutions, Ignited Minds Tutorials makes learning maths easier and more accessible for students. The video is a valuable resource for anyone seeking to boost their understanding and confidence in mathematics. So if you're looking for a helpful and informative guide to revise and practice for your Class 9 Maths exams, be sure to check out the latest upload from Ignited Minds Tutorials. With their expert guidance and support, you'll be well prepared to tackle any maths question that comes your way. Don't miss out on this opportunity to ignite your mind and excel in your studies. Watch the video now and take your maths skills to the next level. Okay, people, in 9th standard we are going to basically do a revision of your entire maths, especially आप लोगों का तो पूरा और आप लोगों का term 2 का, ठीक है? So please pay attention on these questions. I have selected these questions which are pertaining to common chapters, ठीक है? Okay, write the equation of the line that is parallel to the y-axis and parallel through the point. Coordinate geometry का question है भाई साहब, ठीक है? Write the equation of a line. Equation of a line कैसे लिखते हैं हम? देखो, y is equal to mx प्लस c होता है ना? तो अभी हमको इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखना है. y और x के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा. अभी अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इफ एनी लाइन इज देयर विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, हम इसका क्या लिखेंगे भाई साहब? तो हाँ, समझ लो, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस. दिस इज बेसिकली योर x एक्सिस. सो वी हैव अ लाइन हियर विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. So we have a line here which is parallel to y-axis. So this line is parallel to y-axis. So what do we write here? यहाँ पे जितना भी distance होगा, let's say x is equal to a, बस इतना ही हो जाएगा आपका, है ना? इस पूरे लाइन में y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? बताइए यहाँ पे. This is basically parallel to y-axis. तो इसका लाइन क्या हो जाएगा? देखो, इस parallel write the equation that is parallel to y-axis and passing through the point minus 2 0. तो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है भाई साहब? ये यहाँ पे आपका देखो -2 is parallel to y-axis and passing through the point. यहाँ से पॉइंट पास हो रहा है भाई साहब. So this is passing to this point, ठीक है? This is passing to, यहाँ पे हो गया आपका लेट्स से -2 और 0. ये आपका लाइन है, ठीक है? क्लियर है? इस पूरे लाइन में आपका x y का वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है? सो एक्चुअली में ये -2 0 ना भाई साहब. सो हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2. इसका वैल्यू हो जाएगा भाई साहब इस पे पूरे पे x इज इक्वल टू -2. ये हो जाएगा इसका इक्वेशन, ठीक है? सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x इज इक्वल टू -2, ठीक है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द 0.43 फ्रॉम y एक्सिस इज 0.43 है. y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो, ये 0.43 कहाँ पे आएगा? समझ लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है? यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3. तो आप अगर यहाँ से इसको पैरेलल लेते हो, ठीक है, और लेट्स से भाई साहब इधर से आपने किया तो ये 0.43 हो जाएगा, है कि नहीं? दिस वुड बी 0.43. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये 0.43 हो गया. आपको ये दिखाना नहीं है, सिर्फ समझना है इसको, ठीक है? तो आपके ये ग्राफ में ये 0.43 हो गया. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये आपका है भाई साहब y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस. तो y एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना हुआ? हाउ मच इज द डिस्टेंस? 4. सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4. So the perpendicular distance from the y axis here would be 4. यहाँ पे हो जाएगा x is equal to -2.
ये इक्वेशन हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। वेरी गुड, चलिए भाई साहब डायमीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम एमसीक्यूज हैं, फटाफट हो जाने चाहिए। ओके, इन अ हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस एज क्लास इंटरवल। समझ में आ रहा है भाई साहब आपको? ठीक है, कैसे क्लास इंटरवल भाई साहब? देखो यहाँ पे लेट्स से दिस इज अ हिस्टोग्राम दैट यू आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, हिस्टोग्राम भाई साहब कैसे होता है ये? दिस इज बेसिकली लेट्स से आपका ये हमने एक हिस्टोग्राम बनाया भाई साहब। ठीक है, तो ये नीचे का जो बेस है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है जो, ठीक है, उस रेक्टेंगल के नीचे का बेस ये आपका किस पे डिपेंड करेगा? ये दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी क्लास इंटरवल। दिस विल बी ऑब्वियसली क्लास इंटरवल। सो इन अ हिस्टोग्राम ईच रेक्टेंगल, तो हर एक भाई साहब ऐसा आपको रेक्टेंगल दिखेगा और हर रेक्टेंगल का बेस क्या होगा? क्लास इंटरवल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, सिर्फ मुंडी मत हिलाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। हिस्टोग्राम हम सब ने बनाया हुआ है। हिस्टोग्राम एक रेक्टेंगल शेप में आता है भाई साहब। इस रेक्टेंगल शेप का जो बेस है वो कहां पे होगा भाई साहब? यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा। ये क्या पेंसिल छिल रही है, क्या करें? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो दिस विल बी क्लास इंटरवल। आर वी क्लियर? ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2। अभी आप इसको सोचिए कैसे होगा ये ग्राफ। देखो ये एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो लेट्स से हमारा यहाँ पे भाई साहब x इज इक्वल टू क्या है भाई साहब आपका? -3। चलो x इज इक्वल टू -3 कहाँ पे हो जाएगा लाइन? लेट्स से 1 2 3, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू -3, है कि नहीं? समझमा। ठीक है, 1, ये हो गया -2 और ये हो गया लेट्स से -3। तो ये वाली लाइन क्या है? x इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका? x इज इक्वल टू 2। इधर आते हैं भाई साहब 1 और ये 2। इसमें से अगर आप कोई लाइन को पास कराओगे, ठीक है, इसमें से अगर आप कोई लाइन को पास कराओगे तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बोलो? x इज इक्वल टू 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों लाइंस के बीच में देखो ये भी भाई साहब परपेंडिकुलर, ये भी भाई साहब परपेंडिकुलर। तो दोनों क्या कर रहा है? क्यों पेपर फाड़ रहा है? फट पागल है क्या? अच्छा खासा पेपर तो था वो, च्युइंगम डाला क्या उसमें? अच्छा रॉन्ग किया तो फाड़ डाला तूने पेपर को। ओके, तो इनके बीच में भाई साहब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? व्हाट वुड बी द डिस्टेंस हियर? 5। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब? यू हैव टू बेसिकली ऐसा सवाल जो आएगा ना उसको थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आराम से कर सकते हैं इसको। मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाना है, ऐसा डायग्राम अगर नहीं बनाना है, आप एक रफ में भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे को सुविधा है तो इसलिए मैं भाई साहब रेस खींच रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इसने बाकायदा रूप से डायग्राम आपको नहीं बनाना है, सिंपल रफ में भी बनाएंगे तो आप इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इधर कितना है? 3, इधर कितना है? 2, तो 3 + 2 आपका हो गया 5। सिंपल लॉजिक है भाई साहब। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम तिवारी जी समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम v, अगर एक भाई साहब क्यूब है और उसका डायगोनल का लेंथ कितना है भाई साहब? v, देन यहाँ पे भाई साहब 3v इज इक्वल टू l का स्क्वायर। वॉल्यूम v कितना हो जाएगा? इफ l इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डायगोनल ऑफ अ क्यूब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये आपका क्यूब है देखो, ठीक है, दिस बेसिकली क्यूब, सारे साइड्स इसके बराबर हैं। ठीक है, सारे साइड्स बराबर हैं। और हम कौन से डायगोनल की बात कर रहे हैं? हम एक्चुअली बात कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे इस कोने से इस कोने तक जो डायगोनल कनेक्ट होता है, उस कोने से इस कोने तक जो डायगोनल कनेक्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? दिस विल बी द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड के डायगोनल का लेंथ कितना होता है भाई साहब? एनीवन? क्यूबॉइड के डायगोनल का लेंथ कितना होता है? क्यूबॉइड क्या होता है? ए बी सी अलग अलग है ना, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब? बताइए ना, बताइए। अरे ओ देखो जी, देखो इनको जरा, क्यूबॉइड के डायगोनल का लेंथ कितना होगा? अगर समझ लो ये क्यूबॉइड होता था तो कितना होता था लेंथ? किसी को नहीं मालूम? चुल्लू भर पानी कहाँ मिलेगा रे? देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको ऐसे समझो, ठीक है, लेट्स से ये क्यूबॉइड है अगर, ठीक है, लेट्स से अगर ये क्यूबॉइड है, चलो लेट्स से क्या करते हैं, क्यूबॉइड बना ही लेते हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब भाई साहब अलग अलग है। ठीक है, लेट्स से आपका यहाँ पे लेंथ है a, ठीक है, लेट्स से आपका लेंथ है a, ब्रेथ है b और हाइट है c।
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब किसकी, यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब डायगोनल लेंथ की, देखो बड़े प्यार से तो ये हमने समझ लो ऐसे इसको ज्वाइन किया इन दोनों लाइंस को, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा भाई साहब। देखो ये वाला जो दीवार है ये फ्लोर के साथ कहीं पे भी परपेंडिकुलर ही होगा ना, उधर भी लोगे तो परपेंडिकुलर होगा, इधर भी लोगे तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये वाली दीवार जो है ये फ्लोर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अभी तुम क्या बोल रहे हो भाई साहब, ये वाला है लेंथ दैट इज ए, और लेट्स से ये है आपका ब्रेथ बी, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा हाइट सी। समझ में आ रहा है ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? हम ओके। अभी हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। देखो ये ट्राइंगल फ्लोर पे बना हुआ है, फ्लोर का लेंथ है ए और ये है बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। फ्लोर के किसी भी कोने पे जाओगे तो दो दीवारों के बीच आपको 90 डिग्री मिलेगा ना, ठीक है। तो अगर फ्लोर पे मैं यहाँ पे ए और ये हो गया बी, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये वाला कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम इस ट्राइंगल पे आते हैं। देखो इस ट्राइंगल पे इसकी वैल्यू कितनी है सी, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसा आया, समझ में आया भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। ओके, अभी अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो मतलब इस ट्राइंगल में मुझे बताओ इसको कैसे निकालेंगे, इट विल बी सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका करेंगे अपन स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर है ना। तो लेट्स से अपना ये वाला है लेंथ ऑफ डायगोनल एल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बोलो, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो भाई क्यूबॉइड जो है उसी का लॉजिक क्यूब में भी लग रहा है, तो क्यूब में आपका लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, लेंथ ऑफ द क्यूब, ठीक है। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम वी। अभी हम आते हैं भाई साहब वॉल्यूम वी में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे क्या है आपका ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन क्यूब है तो सब बराबर होंगे, मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सारे साइड्स बराबर है क्यूब में, है ना। सो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 3a स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम तो एल की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, अंडर रूट 3a। आर वी क्लियर, क्लियर, क्लियर? एल की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 3a। लेंथ ऑफ अ क्यूब इज अंडर रूट 3 टाइम्स इट्स साइड। अभी हम वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम कितना है भाई साहब आपका, वॉल्यूम होता है भाई साहब एल का क्यूब, है कि नहीं, सॉरी एल का क्यूब नहीं, ए का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम होता है भाई साहब क्या, ए का क्यूब। समझ में आता हम पीपल? हम ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। अभी आपको यहाँ पे v और l के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो ये वाला हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अभी आप कर लो v बाई एल कितना हो गया, दैट इज ए क्यूब बाई अंडर रूट 3a, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, अंडर रूट 3v इज इक्वल टू भाई साहब क्या हो जाएगा, a इंटू एल। अभी a मतलब क्या हो जाएगा आपका, a क्यूब है आपका v, है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे देखो L की वैल्यू यहां पे कितनी आई है, L की वैल्यू आई है अंडर रूट 3 ऑफ A, है ना। और A की वैल्यू यहां पे क्या है, देखो A क्यूब इज इक्वल टू V, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, क्यूब रूट ऑफ V, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बोलो, अंडर रूट 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ V। अभी यहां पे आपको कोई भी यहां पे दिख रहा है, देखो आर यू सीइंग एनीथिंग आउट हियर, नहीं दिख रहा है। एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, देखो अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू बी। अभी दोनों तरफ क्यूब कर दो, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इज दिस अंडरस्टूड? देखो ए क्यूब वी हो गया, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ वी, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 ऑफ ए, तो अंडर रूट 3 और ए की वैल्यू तुमने यहां पे क्या निकाली है, क्यूब रूट ऑफ वी। क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर दें तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, एल का क्यूब हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ वी, इस पूरे का भाई साहब क्यूब। तो अंडर रूट 3 का क्यूब मतलब कितना होगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, है कि नहीं। और क्यूब रूट ऑफ वी है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी, है कि नहीं, ये आ जाएगा आपका वी। ओके, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा,
3√3v, तो L क्यूब कितना हो गया आपका 3√3v, L क्यूब इज 3√3v, डी ऑप्शन हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो ये ऑप्शन हियर विल बी डी, द ऑप्शन हियर विल बी डी। द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 42, मिड वैल्यू है किसी क्लास इंटरवल का। इफ द क्लास साइज इज 10 देन द अपर एंड द लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लास कितना हो जाएगा। क्लास साइज आपका 10 है, अपर और लोअर लिमिट्स कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे भाई साहब, देखिए भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू होती है भाई साहब, लेट्स से अपर लिमिट, लेट अपर लिमिट बी ए, ठीक है, एंड लोअर लिमिट बी बी। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, a प्लस बी बाई 2 है कि नहीं, a प्लस बी बाई 2, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 42, समझम। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 84, ये हो गया आपका भाई साहब क्या पहला इक्वेशन, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। द मिड वैल्यू इफ द क्लास साइज इज 10, मतलब b माइनस a करोगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है, तो b माइनस a इज इक्वल टू 10, ये हो गया तुम्हारा भाई साहब सेकेंड इक्वेशन। इधर तुम क्या लिख सकते हो उसको, b प्लस a इज इक्वल टू 84, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐड कर दो दोनों को, ठीक है, एडिंग, सो इफ वी हैपन टू ऐड देम वी विल गेट व्हाट 94, ये हो गया कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 94, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 47, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b की वैल्यू होती है भाई साहब 84, ठीक है, सो देयरफॉर a की वैल्यू हो जाएगी 84 माइनस b, दैट इज 84 माइनस 47, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल हम 37, ठीक है, a की वैल्यू हो गई 37। तो आपका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल इज 37 to 47, so this would be the answer वा, कौन सा भाई साहब आंसर वा, this would be the answer वा। क्लियर है विप्लम, the mid value if the class size is 10 then the upper and lower limits of the class are 37 and 47, समझ गया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। Okay, the number of cubes of side 3 centimeter that can be cut to form a cuboid of dimension, easy सा सवाल है देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब, लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स बी n, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स बी n, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स क्या हो जाएगा बोलो, n इंटू 3 सेंटीमीटर का भाई साहब क्यूब है कि नहीं, 3 सेंटीमीटर का क्यूब, क्लियर है। वॉल्यूम एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो n क्यूब्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा n इंटू 3 सेंटीमीटर का क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब हो गया आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। सो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 10 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। सो ये सेंटीमीटर सब कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब, आपका 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 2 जा कितना हो गया आपका 20, ठीक है। सो आपका यहाँ पे आंसर हुआ कितना हो जाएगा 20। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, नंबर ऑफ क्यूब्स इज 20, क्लियर। राइट द ट्रूथ वैल्यू whether it is true or false of the following with suitable reasons. The degree measure of an arc is complement of the central angle containing the arc. Degree measure of an arc is complement of the central angle containing the arc. तो आपका भाई साहब समझ लो कोई सर्कल है, so this is basically a circle है, दो सर्कल क्यों बन गए भाई साहब, तो आपका भाई साहब यहां पे कोई आपने आर्क बनाया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मेजरमेंट ऑफ द आर्क, सो यहां पे आपका A है और लेट्स से ये है B और ये है C, ठीक है, और
द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटर। तो आपका कोई भी यहाँ से कोई भी आर्क का मेजरमेंट अगर हम लेंगे तो लेट्स से हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। अभी लेट्स से ये आपका डी है, तो एंगल ए डी सी ये क्या होता है भाई साहब, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी होता है भाई साहब। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब अगर आप एक एंगल को दूसरे एंगल से प्लस करेंगे तो ये 90 डिग्री आना चाहिए। क्या ऐसा कुछ भी दिख रहा है, इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो वी विल से दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसका कोई भी वैसा मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, which one of the following is not a measure of central value, mean, range, median, mode। दानिया सेंट्रल वैल्यू नहीं है, ऐसा तीन ही चीज सेंट्रल वैल्यू होती है, क्या क्या, मीन, मीडियन एंड मोड। रेंज इज नॉट अ सेंट्रल वैल्यू, रेंज आपका क्लास रेंज होता है, इट इज नॉट अ सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। सो ये आपका सेंट्रल वैल्यू नहीं होगा भाई साहब, दिस इज नॉट अ सेंट्रल वैल्यू। The percentage marks obtained by students of a class in mathematics are as follows: 64, 36, find their mean। ये मैं नहीं करने वाला, तुम ही करो भाई साहब, ठीक है। मीन क्या हो जाएगा भाई साहब, द मीन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, ये पूरा भाई साहब, ठीक है, समेशन ऑफ x अपॉन n, ठीक है। अभी यहाँ पे करते रहो भाई साहब, 64 प्लस 36 प्लस 47 प्लस 23 प्लस 0 प्लस 19 प्लस 81 प्लस 93 प्लस 72 प्लस 35 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन भाई साहब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यूज हैं, ये हो जाएगा इसका मीन। निकालिए जाएगा फटाफट, हो जाएगा, ये इजी है भाई साहब, ठीक है। ओके, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 25, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, ठीक है। मीन ऑफ 5 नंबर्स, अभी लेट से लेट द 5 numbers be x1 x2 x3 x4 एंड x5, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 मीन दैट इज डिवाइडेड बाई 5। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27, तो इसका भाई साहब कितना हो गया 27। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, दिस विल बी हाउ मच, 27 into 5। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम 7 5 35, 5 2 10 और ये हो गया 13। तो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू कितनी हो गई, 135। आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर भाई साहब, ये हो गया 135। नाउ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड, कोई भी एक नंबर हमने लेट से हटा दिया है, तो लेट से हमने x5 को हटा दिया, तो यहाँ पे मीन कितना हो गया भाई साहब आपका 25। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, तो ये हो गया x5, ठीक है। अभी अपन करेंगे लेट से लेट x5 बी एक्सक्लूडेड, तो अगर अपन ने भाई साहब x5 को एक्सक्लूड किया है तो क्या हो जाएगा बोलो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अभी इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन, 4 ही वैल्यूज हैं, तो मीन निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 4, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 25, ठीक है। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 4 जा 100, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया लेट से तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। इससे इसको माइनस कर दो भाई साहब, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, दैट विल बी इक्वल टू भाई साहब कितना है, 135। और इधर कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 100, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे हमने
माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्टिंग अगर करते हैं माइनस 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 माइनस, कैंसलम 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 कैंसलम, क्या बचा यहाँ पे x5, इधर क्या बचा बोलो 35। यहाँ पे आपसे वही पूछा है फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, तो क्या बोलेंगे देयरफॉर द एक्सक्लूडेड नंबर इज 35। आर वी गेटिंग दिस पीपलम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल कीजिएगा, 13 वाला सवाल फटाफट करना है भाई साहब, फटाफट। Write the equation of a line passing through the point 04 and parallel to x axis। तो 04 है भाई साहब और पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन भाई साहब जल्दी बताइए ना। और पैरेलल टू क्या है भाई साहब x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है। वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये x एक्सिस के भाई साहब क्या है पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू 4 है ना। इस लाइन की वैल्यू क्या होगी y इज इक्वल टू 4, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू 4, सिंपलम, समझम समझम समझम, ठीक है, ओके। द ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्डेड द स्पीड, ये क्या दूसरा सवाल कहां से निकल गया, ओके, in kilometers per hour of 10 motorists as this much, later on an error, हाँ ठीक है ना, find the correct average speeds of the motorist if the instrument recorded 5 kilometer per hour less in each case। चलिए फटाफट फटाफट, भाई साहब आपके रीडिंग से यहाँ पे, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्डेड द स्पीड ऑफ 10 मोटरिस्ट, later on an error in recording instrument was find the correct average of motorists if the instrument recorded 5 km per hour less, ठीक है। तो न्यू रीडिंग्स कितनी हो जाएंगी आपकी, तो न्यू रीडिंग्स और करेक्ट रीडिंग्स जो होंगी वो क्या होंगी, करेक्ट रीडिंग्स आपकी हो जाएंगी क्या, हर एक से भाई साहब 5 माइनस कर दो, 42 प्लस आपका 53 से 5 माइनस कर दो भाई साहब 48 प्लस 42 प्लस यहाँ पे 60 से 5, तो हो गया आपका 55 प्लस 30, हाँ क्या प्लस ही तो कर रहे हैं, फाइन, एक मिनट, 5 लेस ना, फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द मोटर्स इफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिकॉर्डिंग 5 किलोमीटर पर आवर लेस, अच्छा लेस किया है, हाँ लेस किया है, करेक्ट, ठीक है। तो इसने भाई साहब लेस स्पीड रिकॉर्ड किया है, तो 47 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब 52, ठीक है, 58 प्लस 54 प्लस 65 प्लस 44 है ना, प्लस 47 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 57 प्लस 53, ठीक है, अपॉन भाई साहब कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही होना है, ठीक है, इसको करना है भाई साहब, इसको सवाल कीजिए जरा फटाफट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप प्रीवियस वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी द प्रीवियस values are included, ठीक है, whereas frequency is just pertaining to the class, to the particular class। ओके चलो भाई साहब ये वाला सवाल करना फटाफट। इन द गिवन फिगर AOC भाई साहब आपका डायमीटर है ऑफ द सर्किल, एंड आर्क AXB इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क BYC। चलिए 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 फटाफट, फाइंड एंगल BOC।
एंगल ए ओ सी इज द डायमीटर, ये आपका ए ओ सी क्या डायमीटर है, एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क बी वाई सी, तो तुम्हारा ये बी वाई सी है, देखो एंगल ए एक्स बी, ये ए एक्स बी है, आर्क ऑफ ए एक्स बी मतलब ये वाला आर्क, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क बी वाई सी जो एंगल सब्टेंड कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे समझो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो दो दिया हुआ है यहाँ पे, ए एक्स बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क बी वाई सी, इसका मतलब क्या है, देखो बी ए एक्स बी मतलब ये वाला आर्क, देखो एंगल ए ओ बी, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी इज हाफ ऑफ एंगल कौन सा, ये बी वाई सी है ना, बी ओ सी, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, समझम पीपलम, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब बताओ मुझे यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो आपको BOC कैलकुलेट करना है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AOB, क्लियर, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB। अब इसका कैसे करेंगे भाई साहब, जल्दी फटाफट, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, अरे बोलो बच्चा बट ये कितना होगा, 180 होगा भाई साहब, डायमीटर है, ठीक है, ओके। और कौन सा एंगल तुम बता सकते हो इसमें, और कौन सा एंगल बता सकते हो, और कौन से एंगल की वैल्यू मालूम होगी यहाँ पे, अरे जल्दी भाई साहब, अरे भाई साहब ये वाला 90, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना, क्लियर है, ओके। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो AOB, अगर मैंने इसको मान लिया, लेट्स से ये हो गया तुम्हारा BOC इज ट्वाइस ऑफ AOB, तो BOC ये वाला लेट्स से अगर तुमने माना इसको BOC इज ट्वाइस ऑफ AOB, तो ये अगर x है तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से 2x, है कि नहीं, समझम, बहुत बढ़िया। अब इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, इन दोनों एंगल्स को 180 आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। एंगल क्या है, AOB प्लस एंगल BOC, ये कितना आ जाएगा बोलो, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो तुम्हारा भाई साहब एंगल AOB की जगह पे तुम क्या लिखोगे, लेट से तुमने यहाँ पे लिखा एंगल AOB को मान लिया x, ठीक है, लेट एंगल AOB इज इक्वल टू x, सो देयरफॉर एंगल तुम्हारा BOC कितना हो जाएगा, अरे बोलो बाबा 2x, ठीक है, तो BOC कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब 3x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी, 180 बाई 3, दैट इज हाउ मच, 60 डिग्री, क्लियरम पीपलम, ठीक है। आपको BOC वैल्यू फाइंड करनी थी, BOC वास्तव कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB, आपने AOB को x माना था, तो देयरफॉर एंगल BOC की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ x, दैट इज 2 into 60, दैट इज हाउ मच, 120 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। सो यहाँ पे BOC की वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिग्रीज, क्लियरम पीपलम। चलो भाई साहब, ये सवाल आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से फटाफट कीजिए। जल्दी फटाफट करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे बताओ जल्दी से, द अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ अ डेटा, यहाँ पे भाई साहब एक फॉर्मूला लगता है, क्या है फॉर्मूला भाई साहब, कोई बता सकता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी ये मीडियन है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 3 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे मोड कितना हो जाएगा भाई साहब, मोड हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, द अर्थमेटिक मीन, अच्छा मीन दिया हुआ यहाँ पे, मीन कितना दिया हुआ है, 24, ओ 3 टाइम्स ऑफ मीन है, आई एम सर सॉरी भाई साहब, 3 टाइम्स ऑफ मीन माइन, नहीं यार यहाँ पे मीडियन ही फाइंड करना है, सॉरी दिस इज मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 3 टाइम्स ऑफ
मीन, ठीक है। तो मोड की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी दी हुई है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है भाई साहब कितनी, -3 इंटू मीन की वैल्यू है 24, ठीक है। ये हो गया आपका 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, और मोड का वैल्यू जल्दी से बता भाई साहब कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल -72, 12, तो 12 प्लस 72 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा मीडियन इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, 7 + 1 8, ये हो गया 3, 3 2 6, 3 8 24, तो आपका मीडियन का वैल्यू कितना हो गया, 28। क्लियर हम पीपलम, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इसको करना जरा फटाक से, क्विक। इतना बड़ा बड़ा स्पेस कहाँ छोड़ी हो सवाल के लिए। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन आर देयर इन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर दिस मच, ठीक है, द आयरन बीइंग दिस मच थिक, सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स, एक ओपन बॉक्स है, ठीक है, उसमें कितना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन है, ओपन बॉक्स है भाई साहब, आय धक्का 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 धक्का, आय ये आपका एक ओपन बॉक्स है, ठीक है, क्लियर है। तो ओपन बॉक्स है मतलब बाहर का नहीं लगेगा, है ना। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे ये ऊपर का जो हिस्सा है उसको माइनस कर देंगे। आपको यहाँ पे पूछा है क्यूबिक सेंटीमीटर्स, मतलब आपको पूछा है यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो ना बोलो, वॉल्यूम आपका कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना भाई साहब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। अभी इस चीज को समझो कि हर एक का यहाँ पे कितना है, कितना है भाई साहब आपका 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, तो इतना ही आयरन है। देखो हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन इन ओस एक्सटर्नल डायमेंशंस आर दिस मच, द आयरन बीइंग थ्रू आउट, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ आयरन वेज दिस मच, फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दूसरा वाला बॉक्स सेटअप हो जाएगा क्या, नहीं काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा भाई साहब ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अभी आप बताओ इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइए बताइए फटाफट फटाफट। थिकनेस दिया हुआ यहाँ पे, आयरन बॉक्स है, ओपन बॉक्स है, हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर दिस, द आयरन बीइंग 1.56 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, इतना थिकनेस है इसका, ठीक है। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन लगा होगा इसमें, एरिया क्यों निकालेंगे, वॉल्यूम ही निकालना है, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल के लेंथ को माइनस कर देंगे तो वो ऊपर का जो वॉल्यूम से एरिया नहीं माइनस कर सकते, लेंथ माइनस कर देंगे तब वो ऊपर का हट जाएगा और उसका वैल्यू क्या माइनस करोगे, लेंथ कितना लेंथ, 36 सेंटीमीटर। कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लगा है इसको बनाने में। देखो समझ लो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, यहाँ पे आयरन लगा है, यहाँ पे आयरन लगा है, नीचे आयरन लगा है, इधर भी आयरन लगा है, इधर भी आयरन लगा है, सिर्फ ऊपर आयरन नहीं है। अभी आपसे पूछा है कि भाई साहब इसका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज हुआ है, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक बॉक्स है, क्यूबॉइड बॉक्स है, जिसका ऊपर का भाई साहब आपको नहीं दिया हुआ, ऊपर खुला है, ठीक है, इट्स एन ओपन बॉक्स। सो ये वाला सारे वॉल्यूम्स को ऐड करके कितना वॉल्यूम आएगा, हाउ मच विल बी द वॉल्यूम। तुम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो, तुम लोग एरिया को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हो, एरिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। क्या इसमें वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि इसका भाई साहब ऊपर का जो है वो तो माइनस है ना, तो कैसे निकालोगे इसको, फिर से सोचो सवाल क्या है भाई साहब। सवाल तुमको दिया हुआ ये एक बॉक्स है, आयरन बॉक्स है, इसका वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन लगा इसको बनाने में, जो ऊपर से ओपन है। अब सवाल तुम लोग सोचो कि अच्छा इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, ये एरिया नहीं माइनस कर सकते ना, वॉल्यूम होता है और आपका भाई साहब एरिया होता है।
तो वॉल्यूम से एरिया को माइनस भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं नहीं, तुम फिर से वही बात कर रहे हो, तुम फिर से एरिया की बात कर रहे हो। टोटल टोटल क्या निकालोगे? टोटल ओके, टोटल वॉल्यूम निकाला, फिर क्या ऊपर का माइनस करोगे? नहीं, स्लांट हाइट कैसे होगा? नहीं, स्लांट हाइट नहीं, ऊपर का क्या माइनस करोगे? एरिया? नहीं, वॉल्यूम से तुम एरिया नहीं माइनस कर सकते। ना ना, पूरा वॉल्यूम निकाल के वो 1 पॉइंट थिकनेस ऐड करके फिर वॉल्यूम निकाल के वो तो भाई साहब अगर मैं बोलूं आपको कि ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम कितना लगा रहेगा? देखो, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन, यहाँ पे 36 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो कितना है, 36 है ये, ठीक है, ये कितना है भाई साहब आपका 25, और थिकनेस कितना है आपका? थिकनेस इज 1.5 सेंटीमीटर। चलो भाई साहब ये 1.5 ऐसा है ना भाई साहब, ये थिक है, इतना थिक है ये, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? तो अभी आप बताओ यहाँ पे नीचे वाले शीट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये निकाल सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये वाला हाइट कितना है? 1.5। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ओके, तो ये हो गया नीचे वाले शीट का वॉल्यूम, 36 इंटू 25 इंटू 1.5। ठीक है, क्लियर है? अभी 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 भाई साहब इस वाले शीट का और इस वाले शीट का वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा? इसका थिकनेस कितना है? थिकनेस वही है ना, लेंथ कितना है इसका? 25 और ब्रेथ कितना है इसका? हाइट जो है भाई साहब कितना है? 16.5। ये हो गया तुम्हारा 16.5। तो दिस विल बी इंटू 16.5, ठीक है, इंटू 16.5 इंटू इसका भी थिकनेस है ना भाई साहब, 16.5 इंटू इनका थिकनेस भाई साहब 1.5। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? इधर है और इधर है, तो इसका मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाले का सिर्फ बेस ही है, ऊपर वाला नहीं है, तो इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अभी आगे और पीछे भाई साहब, ठीक है, आगे और पीछे मतलब अगेन 2 इंटू 36 इंटू 16.5, 36 इंटू 16.5 इंटू 1.5, ऐसे वॉल्यूम को ऐड करना है भाई साहब। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऐड द वॉल्यूम। आप यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते और वॉल्यूम को एरिया के साथ भाई साहब ऐड भी नहीं कर सकते। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो भाई साहब? ये जो नीचे वाला शीट है इसका वॉल्यूम निकाल रहे हो तुम, इतना मोटा सा एक शीट है उसका वॉल्यूम निकाल रहे हो। कैसे? ये हो गया 36 इंटू 25 इंटू 1.5, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ऊपर वाले का ये नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला भाई साहब इट्स एन ओपन बॉक्स। अभी हम इस साइड वाले वॉल पे आते हैं। साइड वाले वॉल पे 25 इंटू 16.5 और इसका थिकनेस कितना है? 1.5। ठीक है, और क्योंकि साइड वाला वॉल इधर भी एक है इधर भी एक है, इसलिए अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। अभी हम आगे और पीछे की तरफ आते हैं। आगे कितना है? 36 इंटू 16.5 इंटू 1.5, और पीछे भी कितना है? 36, तो इसीलिए 2 इंटू 36 इंटू 16.5 इंटू 1.5। क्लियर है? इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर रहे हैं। दिस इसका होगा आंसर, दिस वुड बी द आंसर। आर बी क्लियर ऑन हाउ दिस इज कैलकुलेटेड? वॉल्यूम को भाई साहब आप एरिया के साथ, अगर आपसे एरिया पूछा होता तो बहुत आसानी से निकल गया होता। ये एरिया में क्या करना था आपको? इस पूरे का एरिया निकालेंगे, ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, माइनस आप कर दो लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? दैट वुड हैव बीन ईजियर, बट हियर यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ईच सेगमेंट, और वैसे इसको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलो इसको कल ही करेंगे भाई साहब। इसको भाई साहब करके आने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा।